When I was an assistant director, we used to grow beards, sir, because people will take us seriously. I did not grow it, it grows. A beard does not grow on just gurus, it grows on all men. Really. Sure. Believe me, it is so. But they're all doing all kinds of funny things with it. You must ask them, why are they doing it? No body part has come without a purpose, isn't it? For everything, including the spleen, there is a purpose. So nature did not give you anything without a purpose. If you ask them, why are they removing it, they don't know. Because when the English came to India, every Indian man had a beard or at least a moustache. Today you go out on the Mumbai street, everybody is a muchmunda, because they're trying to imitate the people who came and ruled them. Because those who rule you are a symbol of power. If you're in a certain level of sensitivity, then you would know what is the effect and the aspect of, everything in your body. You think this is fashion, but you must understand the only reason why you're cutting your hair into various shapes and forms is because there is no pain in it. So if there was no pain in your nose, in the name of fashion, you would have cut it into many shapes by now. Even though there's pain, people are poking it in 10 different places today. Suppose there was no pain in your whole body, you would have taken your intestines out and go like this on the street. Yes? Yes or no? Right now, most human beings are not conscious enough, their intelligence is not conscious enough even to preserve themselves if there was no pain. It's only pain which is keeping them in one piece. Otherwise, they will cut themselves into two pieces and carry one hand here and one hand there. They would do all kinds of crazy things. Only pain is saving them, not their intelligence. If your intelligence begins to function, if your sensitivity begins to function, then your concern will be about how you are within yourself and what you experience and how you can perceive more. Your concern will be not about how you look. So, the advantage about the looks is, for 10 years if I don't have a mirror, I still look the same. People who are removing all this, one day without a mirror they look different, isn't it? And whatever your fashion of the day, have you seen pictures of people 50 years ago, 100 years ago? Somebody cut their moustache like this, somebody did this. Today you look at it looks funny, okay? They look like caricatures. And today's fashions also will look like that after a period of time. But a full bearded man looks the same always. 1,000 years later, he still looks the same because that's the way nature intended. Nature did not intend anything without a purpose. You believe in geometry and design. So the design is like this. I don't want to change the design of the creator, I want to use it to the fullest benefit. यहां तो हर बात में रहस्य और लोग एक से एक बातें पूछते हैं। 5वां प्रश्न, भगवान क्या कारण है कि सभी संत बाल और दाढ़ी बढ़ाए रहते? अगर वे लोग बाल और दाढ़ी न बढ़ाएं तो क्या संत नहीं कहेंगे? अमरनाथ सिंह ने पूछा है। अब मुझे पता नहीं संत कहाएंगे कि नहीं कहाएंगे,
और संतों को क्या पड़ी कि संत कहाते कि नहीं कहाते, मगर लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाल बच्चों को क्या कह के डराओगे? बाल बच्चों को डराने का एक उपाय है कि बाबा जी आ रहे हैं। सोचो तुम क्या क्या बाल बच्चों को कह के डराओगे अगर संत बाल और दाढ़ी न बनाए, पैंट कोट और टाई लगा के घूमे, तो बच्चों को कैसे डराओगे? बच्चों को डराने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अभी संत कम से कम इतने काम तो आते ही कि देख अगर गड़बड़ की तो बाबा जी को दे देंगे। बाबा जी का मतलब समझते हो? बाबाजू, जो इधर से उस तरफ चले गए, उधर ही रहने लगे बाबा जी। दाढ़ी और बाल बढ़ाना कुछ अर्थ तो रखता है। मैंने तो कभी कटाया नहीं, हालांकि मैं कोई संत नहीं हूं और संत होना भी नहीं चाहता। मैं जब विश्वविद्यालय में था तो मेरे वाइस चांसलर को मैं मिलने गया। वो बहुत आधुनिक आदमी थे, सारे विश्व का भ्रमण किया था, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया था, कैम्ब्रिज से ही डीलिट थे, तो बिल्कुल ही अत्याधुनिक थे। उन्होंने मेरी दाढ़ी मूछ देखी, और मैं तो यूनिवर्सिटी में भी लुंगी पहनता था, एक बड़ा झब्बा, और खड़ा हूं कि आधा मील से लोगों को पता चल जाए कि मैं आ रहा हूं, सो लोग सावधान हो जाएं कि बाबा जी आ रहे हैं। जिनको डरना हो डर जाएं, जिनको भागना हो भाग जाएं, जिनको जो भी इंतजाम करना हो कर लें। मैं गया था उनसे कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप तो पीछे हम बात करेंगे, पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमने बाल और दाढ़ी क्यों बढ़ाए। मेरे विभाग के दो जो अध्यक्ष थे, मेरे जो प्रोफेसर थे, मुझे बहुत प्रेम करते थे, जो मेरे साथ गए थे मेरी सिफारिश के लिए कि मुझे निश्चित ही स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। वो मुझे समझा के ले गए थे कि देखो किसी विवाद में नहीं पड़ना। रास्ते भर मुझे समझाते रहे थे, देखो मैं तुमसे फिर कहता हूं। दरवाजे के बाहर भी उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मैं तुमसे फिर कहता हूं, बात विवाद नहीं करना, अपने को स्कॉलरशिप लेने से मतलब है, और स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाएगी। मैंने उनसे बात की है, वो राजी है, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन तुमने अगर कोई बात विवाद खड़ा कर लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तुम जैसे मुझसे बात विवाद करते हो उनसे मत करना। मैं सुनता रहा, मैंने कहा कि जब उनसे नहीं करना तो तुमसे भी नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल चुप हूं, मगर मैं ये भी कह देता हूं कि अगर उन्होंने कोई बहुत बुनियादी बात छेड़ दी तो फिर बाहर में जाए स्कॉलरशिप, मिले कि ना मिले। और उन्होंने यही बात छेड़ दी। उन्होंने देख के मुझे कहा कि और सब तो ठीक है, दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ाई। मेरे प्रोफेसर जो मेरे पास ही बैठे थे, पैर से मेरे पैर में पैर मारने लगे कि चुप। मैंने उनसे कहा कि देखिए, इसके पहले कि मैं आपसे बात करूं, मेरे प्रोफेसर को कहिए कि मेरी टांग में टांग न मार। मेरे प्रोफेसर तो बहुत घबरा गए, उनको तो पसीना छूट गया। मैंने कहा कि तुम्हें क्यों पसीना छूट रहा है, स्कॉलरशिप मेरी जा रही, जाने दो।
और वाइस चांसलर तो बहुत हैरान हुआ कि मामला क्या। उन्होंने कहा क्यों टांग में टांग मार रहा है? मैंने कहा ये मुझे समझाते आ रहे हैं रास्ते भर से कि अगर विवाद किया तो स्कॉलरशिप चली जाएगी। मैंने भी इनसे कह रखा है कि अगर उन्होंने कोई बुनियादी बात छेड़ी तो विवाद होकर रहेगा। आपने बुनियादी बात छेड़ दी, अब ये मेरी टांग में टांग मार रहे। अब मैं स्कॉलरशिप की फिक्र करूं कि अपनी आत्मरक्षा करूं? आप बोलिए। उन्होंने कहा तुम फिक्र छोड़ो, विवाद कर सकते हो, स्कॉलरशिप कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा स्कॉलरशिप का मामला पहले निपटा दीजिए, ताकि ये नहीं तो ये मेरी टांग में टांग मारेंगे। बात इतनी साफ थी कि उन्होंने पहले मेरी स्कॉलरशिप के फॉर्म पे दस्तखत किया कि ये खत्म, अब बोलो। मैंने कहा मैं तुमसे ये पूछता हूं कि आपने बाल और दाढ़ी कटाए हैं या मैंने बढ़ाए? ये तो अपने आप बढ़े, आपने कटाए क्यों? उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि कटाए तो मैं नहीं। उनका तुम मुझसे पूछ रहे हो उल्टे, उल्टा चोर कोतवाल को डांट। मैंने बढ़ाए नहीं, अब मैं क्या करूं? बढ़ गए। कटाए नहीं, ये बात जरूर है, क्योंकि मैं आज तक तय नहीं कर पाया कि कटाऊं कैसे। भगवान बढ़ा रहा है और मैं कटाऊं। अब कल तुम हमसे यही कहने लोग उंगलियां क्यों नहीं कटाई, कि टांग क्यों नहीं कटाई, तभी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या क्या कटाएं? तुमने क्यों कटाए? उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। कितना समय चाहिए? मैंने कहा स्कॉलरशिप का मामला तो खत्म हो चुका है, अब ये बात चलेगी, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं रोज आ जाया करूंगा। आप सोचें, रोज मैं ठीक 11 बजे आपके दफ्तर पर दस्तक दिया करूंगा। दस्तक देने की वैसे भी जरूरत नहीं, मेरी खड़ा हूं करीब आधा मील से बस्ती। मैं रोज वहां जाने लगा। वो मुझे देखते ही से कहते कि भाई अभी नहीं सोच पाया। चौथे दिन मुझसे बोले कि तुम मुझे सोने दोगे कि नहीं? रात भर मैं करवटें बदलता हूं, सोचता हूं कि क्या जवाब देना। कटाए तो मैं नहीं है, ये बात तो सच है, कसूर मेरा ही है, जो कुछ भी भूल चूक है मेरी, पूछा भी मैं नहीं। मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा सोचो तो, अगर कोई स्त्री दाढ़ी मूछ बढ़ा ले तो उसको तुम क्या कहोगे? कहे उसको हम पागल कहेंगे। तो मैंने कहा कोई पुरुष दाढ़ी मूछ कटा ले उसको तुम क्या कहोगे? स्त्री बेचारी पागल, क्योंकि दाढ़ी मूछ बढ़ा ली। मैं उनसे पूछा कि अगर स्त्री दाढ़ी मूछ बढ़ा ले उससे कोई विवाह करेगा? उनका भाई मुश्किल है उससे कोई विवाह करे। आप विवाह करोगे? मैं तो कतई नहीं करूंगा, दाढ़ी मूछ वाली स्त्री से कौन विवाह करे? तो मैंने कहा कि और जिस स्त्री ने आपसे विवाह किया है उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उसने दाढ़ी मूछ रहित पुरुष से विवाह कर लिया। ये क्या अन्याय है? ये कैसा मापदंड है? दोहरे मापदंड चल रहे हैं। 5वें दिन उन्होंने मुझसे कहा मैं हाथ जोड़ता हूं, प्रश्न तो मुझे और भी पूछने थे मैं मतलब खड़ाऊं के संबंध में, और ये चोगा और ये लुंगी, मगर मैं कुछ नहीं पूछता भैया, मुझे पूछने नहीं प्रश्न। मैं हार गया, मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूं। और अब मैं समझा कि तुम्हारा प्रोफेसर क्यों तुम्हारे पैर में टांग मार रहा था। अरे वो मेरी टांग में टांग मारता तो ठीक था, उसे मुझे सावधान करना था, तुम्हें क्या सावधान करना? फिर 2 साल मेरे उनसे संबंध रहे, उन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं। चाहे मैं वो देख भी लें कि मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूं जो कि यूनिवर्सिटी के स्नातक को करना चाहिए, मगर अगर मैं ऊंट पे भी सवार होकर पहुंच जाता तो भी मुझसे नहीं पूछ सकते थे तो ऊंट पे सवार क्यों, क्योंकि पता नहीं इसमें से क्या मामला निकले, फिर पीछे झंझट खड़ी हो। तुम पूछ रहे हो अमरनाथ सिंह कि संत बाल और दाढ़ी क्यों बढ़ाए रहते?
संत बेचारे सहज स्वाभाविक लोग जो परमात्मा करता है करने देते हैं, बाधा नहीं डालते कि बैठे उस तरह लिए और बाधा डाल रहे हैं। परमात्मा जो करता है उसे सहज स्वीकार करते हैं, और ये पुरुष का लक्षण है, ये पुरुष के शरीर का हिस्सा है, ये बिल्कुल नैसर्गिक है। ये तो बिल्कुल पागलपन है कि दाढ़ी मूंछ सफा करके बैठे हुए हो। ये शोभा नहीं देता। इससे तुम्हारे पुरुषत्व में थोड़ी सी कमी पड़ जाती। तुम्हारे चेहरों में और स्त्रियों के चेहरों में जितना फासला हो उतना अच्छा, जितना भेद हो उतना अच्छा, उतना आकर्षण होता है। लेकिन पीछे कारण है कि लोगों ने क्यों दाढ़ी मूंछ कटाने शुरू किए। पुरुष को स्त्री का चेहरा सुंदर लगता है, सो उसने सोचा कि इसी तरह का चेहरा मैं बना लूं तो सुंदर लगेगा। यह गलत बात है। स्त्रियों से भी तो पूछो कि तुम्हें कौन का चेहरा सुंदर लगता है। स्त्रियों को स्त्रियों के चेहरे सुंदर लगते। स्त्रियों को तो हैरानी होती ये सोच के कि पुरुष मरे जाते हैं स्त्रियों पर, किस लिए? पुरुषों का चेहरा सुंदर लगता है। और तुमने देखा दाढ़ी मूंछ के साथ पुरुष के चेहरे पे गरिमा आ जाती, भराव आ जाता है, एक व्यक्तित्व आ जाता है। दाढ़ी मूंछ से रहित पुरुष के चेहरे से कुछ खो जाता है, कुछ खालीपन हो जाता है, कुछ रिक्त हो जाता है। अच्छी दुनिया होगी और लोग सहज स्वाभाविक जिएंगे तो ये बिल्कुल स्वाभाविक होगा कि लोग दाढ़ी मूंछ बढ़ाएं। इसमें कुछ आध्यात्मिक रहस्य खोजने की कोशिश ना करो। मगर लोग हर चीज में कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रहस्य खोजने में लगे रहते।